Hello, I welcome you all to our YouTube channel. If you are in final or pre-final year of your engineering electrical branch, and if you are looking for innovative project ideas for your final year project, then this video is helpful to you. In this pandemic situation कि जहां पर कॉलेज बंद है, आपको इक्विपमेंट सपोर्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो आप आपका प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करें वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. I will discuss all the projects that I developed along with my student during my 12 years of experience. So we will explore the different ideas that you can select and that you can explore as a project for your final year engineering class. So let's start today's video. So electrical projects are generally categorized in two types. The first one is known as simulation type and second one is known as working or prototype model. एक और कैटेगरी है जहां पे आप ये दोनों का कंबाइन यूज कर सकते हैं. You are using or you are first of all verified your project in simulation tool and then you are going to prepare for working or prototype model. So these are the software that you can use for your simulation एनालिसिस. आप कौन सा सॉफ्टवेयर से फेमिलियर हो? अगर आप मैटलैब से फेमिलियर हो तो आप मैटलैब बेस्ड प्रोजेक्ट रख सकते हैं या मैटलैब बेस्ड सिमुलेशन एनालिसिस रख सकते हैं. अगर आप मैटलैब से फेमिलियर नहीं हो और आप पीसीम से फेमिलियर हो तो यू कैन डू फॉर और यू कैन गो फॉर पीसीम एनालिसिस. If you are doing your project that is based on microcontroller and even if you want to verify, then this is your Proteus, that is also a good software. Even if you are using, let us say, some power electronics or power system project, especially you can select my power. If you are doing some design and analysis software, you can use a finite elements method. PLECS, this is also good for power electronics software or power electronics project. But remember, main important thing is that whether you are familiar with that software or not. If you are using your first time, let us say you will start with the finite elements method, that is FEM software. And if you are not aware with that software, then it will definitely require or consume much more time. So better suppose you are having a good idea about the MATLAB or if you are having a good idea about the PC, then go for that software only. If you are doing a microcontroller software, you have no choice. You have to use Proteus and you can verify your simulation. If you are working with hardware, you mainly divided in three categories. I have mainly divided hardware project in three categories. The first one is known as a microcontroller because most of or 80% of your project require a good knowledge of microcontroller. And second part, that is a power electronics. Your most of the project that require a power electronic converter, whether it is AC to DC or maybe DC to AC, DC to DC or AC to AC converters and other component that I have referred here as electrical components. So यहाँ पे आप expect कर सकते हो, let us say transformer, resistor, inductor, machine, they all are come under this category. But mainly you can divide it your project in these three particular part, that is microcontroller, power electronics and some electrical component. Even you can include sensor in this particular part. So though you are doing your your hardware particular part, but then also you require some software like Kale. Okay, and our most of the electrical students are actually having a fear of C language, so they will not prefer this particular case and they are go for or they can select auto code generation. So auto code generation means you are using your MATLAB. Okay, here again your MATLAB tool is used to generate the code. So suppose I want to do a SPWM technique, what I will prefer, I will develop a MATLAB coding and then I will use auto code generation. So that auto code software or that software will generate a C code for my particular microcontroller, and this way I can avoid or I can remove my fear for design and development of C coding, right? I will give you the name for auto code generation that I have used. There will be one particular a name that I can say that Weizoom. So Weizoom is also a good option. So let me write down here. You are having one software option that is Weizoom. Then you are having some directly ready-made hardware available that can support with MATLAB. That is what we call it as a DSpace real time. Okay, that is a VHDL type of your hardware element. Like you can use DSpace. That also give you the support from your microcontroller
or that can generate your code without your C code support. So you will just require a must just require your MATLAB simulation or MATLAB M file, and that file will ultimately convert it to your C code, and that will be loaded in your microcontroller. Same way you are having another option, that is also RTLab. But remember, this RTLab and DSpace is very costly, and if you are not having, or if your college are having not that type of software or hardware available, then don't go for that. Yes, you can use this Wyzen. This is slightly, you can say that, a less costlier than DSpace and your RTLab software. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या ओनली सिमुलेशन बेस्ड प्रोजेक्ट वर्थ है? सो ले सकते हैं, इसमें कोई पर्सनल और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और इस वक्त हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। हालांकि पर्सनली आई वुड लाइक टू प्रीफर ऑलवेज अ वर्किंग प्रोटोटाइप मॉडल। एक और बात, अगर आप बाहर जाते हो मार्केट से डायरेक्ट हार्डवेयर तैयार प्रोजेक्ट लेकर आ जाते हो और आप आपके एग्जामिनर को दिखा देते हो, उससे तो लाख गुना बेहतर है अगर आप खुद से, अगर आपको लगता है आप हार्डवेयर डेवलप नहीं कर सकते, तो आप क्या कीजिए, ओनली सिमुलेशन कीजिए। बेहतर है आप कुछ ना कुछ सीख के निकलिए। अल्टीमेटली इंटेंशन रखिए कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाए, ना कि आप डायरेक्ट एक काम कीजिए, आप किसी बाहर से एक्सटर्नल एजेंसीज को हायर कर लीजिए और वो आपको एक वर्किंग प्रोटोटाइप बना के दे देगा। आपको क्या सीखने को मिलेगा इसमें? कुछ भी नहीं। सो हमेशा कोशिश करिए कि हार्डवेयर ही बना पाओ, तो हार्डवेयर ही बनाना सबसे बेहतर है। इफ यू आर नॉट actually, if you are having a fear, then you can go for simulation and hardware combined project. So let us say you start with SVPWM technique. Okay, if you are going for SVPWM based induction motor, okay, so what you have to do, you have to first of all do the simulation and then you go for hardware project. अब अगर आप हार्डवेयर नहीं भी रन कर पाते हो, तो आपके पास बैकअप में एक सिमुलेशन है जो आप एग्जामिनर को बता सकते हो। वहां पे आप चाहो तो यू कैन यूज 2 or 3 कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट SVPWM टेक्निक और उसका एनालिसिस रख सकते हो। सो कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो जहां पर आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर, पहले से मत डिसाइड कीजिए कि आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर या सिमुलेशन करना है। और एक दूसरी बात, आप ऐसा भी मत कीजिए कि आप इतना बेसिक टॉपिक लेके सिमुलेशन कर लीजिए। आप 120 डिग्री मोड इन्वर्टर, 180 डिग्री मोड इन्वर्टर, आप एसपीडब्ल्यूएम टेक्निक, अगर एसपीडब्ल्यूएम टेक्निक आप करना चाहते हो, इफ यू आर डूइंग और इफ यू वांट टू परफॉर्म सिलेक्ट योर प्रोजेक्ट दैट इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, और आप उसमें एसपीडब्ल्यूएम सिलेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर जरूरी हो जाएगा कि आप उसका हार्डवेयर मॉडल बना के रखो, क्योंकि एसपीडब्ल्यूएम सिर्फ और सिमुलेशन, इट इज नॉट अ गुड टॉपिक। इज इट ओके? इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो आप विदाउट योर हार्डवेयर सपोर्ट और लिमिटेड रिसोर्सेज से आप किस तरह से आपका प्रोजेक्ट फाइनल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, योर इंटरेस्ट एरिया और आपके गाइड के इंटरेस्ट एरिया बोथ शुड बी मैच्ड। अगर वो खुद किसी रिसर्च में इन्वॉल्व है, अगर वो खुद पीएचडी कर रहे हैं, तो बेहतर होगा आप उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड करना काफी आसान हो जाएगा। These all are the electrical areas, that is machine design and control, power electronics, renewable energy source, power system, power quality protection, measurement, control and sensor. These all are the areas where most of the electrical engineers are working. So you can select any suitable or major areas based on your interest. But remember, electrical or this domain, though I have differentiate this, but they all are interlinked. So if you are, let us say, selecting, let us say, variable frequency drive, so there is machine is involved, power electronics is involved. Though I have not mentioned, but major category require a good knowledge of microcontroller also. So you have to select your areas such that your interest and your guide interest are matching, and based on that you can select any one area in which you are interested to work on. So in my single video, I could not cover all this area. So what I will do in my today's video, I will mainly focus on machine design and control part. Remember, though I have mentioned only machine design and control part, but definitely some part of power electronics and some part of microcontroller will also going to be involved. And maybe possible some of the sensors or measurement part is also going to be involved in my particular today's session. And maybe possible in next or next to next video, we are going to cover all the other areas also. So this particular videos are going to be a longer, so I will divide it in part.
So selection of machine is very important. You can select induction motor, you can select synchronous motor based on your area of interest. You can select BLDC, PMSM. They all are trending machine for different application like electric vehicle applications. You can select BLDC, PMSM, multi-phase induction motor. They all are trending areas. Friend, remember one thing: you should avoid to select the DC machine based project directly. Directly means you cannot select your project title, which actually depends mainly on DC machine. For example, four quadrant chopper with DC drives. Okay, speed control of DC machine. Try to avoid this type of project because DC machine is nowadays not mainly utilized or not utilized in any kind of industries. So अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट लेकर रखोगे तो एग्जामिनर के सामने आपकी पहली इंप्रेशन ही खराब हो जाएगी. ओके, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ले सकते हो. मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो. बट डायरेक्टली आपने डीसी सीरीज मोटर स्पीड कंट्रोल ले लिया तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी. नेक्स्ट, सो नाउ सेकंड थिंग, आप मशीन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका एरिया आ जाएगा दैट इन विच एरिया you want to work. Whether you want to work on design part of the machine, whether you want to design some machine, whether you want to do some protection type of or speed control areas or condition monitoring areas. Then after that you have to select a controller. This is also very important part. Which type of controller you have to select? Whether if you are familiar with 8051 and if you want to select, let us say 8051, and you want to perform SVPWM fed induction motor control, then remember 8051, which actually operate at 11.0592 megahertz, will not give you a good switching frequency. So selection of controller, that is also very important. And let us say you select some controller and you are not actually familiar with the language of that controller, then it is very difficult. So selection of controller is also very important. So now let us discuss one by one the kind of project that you can select for your final year electrical diploma or degree class. So first of all, you can select this type of project also, the design of your machine. So design of machine, in this particular case, you can select some design topic also, like somebody is doing some analysis in FEM and then finalize, they can design some efficient machine. So efficiency based design of machine, that is also a good topic. Okay, efficiency based design of machine, that is also a good topic. Then you can select, let us say you can select if you are diploma student, then you can select, let us say, design of 6-phase induction motor. So this is also a good topic. So definitely in that particular case आपको खुद को वाइंडिंग यहाँ पर पूरी के पूरी मशीन डिजाइन करनी होगी. So in that particular case अगर आप नेट पे सर्च करोगे आपको कहीं पे भी मिल जाएगा that how you can design or how you can design a 6-phase machine, कि आप उसे किस तरह से डिजाइन कर सकते हो. Not only 6-phase, आप 5-phase, 7-phase, 9-phase मशीन भी सिलेक्ट कर सकते हो और आप उसे रन करके रख सकते हो. So this is also a good topic. So in that particular case, you can run that 6-phase motor, okay, by using, you can say that a simple control. Let us say आप star delta transformation use कर सकते हो. You are having, let us say, primary star and secondary, you make it star and as well as delta. So yeah, this will ultimately give you a 6-phase, and this 6-phase is connected to your 6-phase induction motor. And additionally, if you are in B level of the project, what you can add? You can add, let us say, a modeling. Okay, so you can add a modeling of 6-phase induction motor. So if you are combining this thing, let us say you start with modeling of 6-phase induction motor, you design a 6-phase induction motor. So you can design 6-phase induction motor and you can run this 6-phase induction motor with this, then you can say that it is a good topic, then you can select this particular area. Then next one is the protection based project. So you can do the protection of induction motor. So there will be again two options are there. Maybe you can go for some numerical relays or microcontroller based project. So here you require some numerical relays, right? So definitely the cost of this numerical relays is very high. Okay, so cost of this numerical relays is very high. So remember, if your college will support or if your college is ready to develop this type of project, then only you can select this type of project. तो यहाँ पर आप college को भी ये support कर सकते हो कि ultimately this is going to be used for student practical purpose also. So इस तरह से अगर आप इसे combination में use करना चाहते हो तो आप ये project भी ले सकते हो.
प्रोटेक्शन में अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो तो मैं एक और सजेशन दे सकता हूँ, आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेक्शन. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सिलेक्ट अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, you can avoid a single phasing, reverse rotation protection, you can select, let us say, auto start, or you can say that soft starting or starter of induction motor. So these are the combined project you can select. So the advantage of this project is that if you take this much amount of your this much parameter for your project, then may be possible अगर आप एक दो पैरामीटर ना भी अचीव कर पाए तो बाकी के 4 या 5 पैरामीटर आपके डेफिनेटली अचीव हो जाएंगे. सो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, सिंगल फेजिंग, रिवर्स रोटेशन, सॉफ्ट स्टार्टर, कुछ ना कुछ 4 या 5 पैरामीटर तो आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे. अगर आप चाहो तो इसमें और भी पैरामीटर ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट वन, कंडीशन मॉनिटरिंग. कंडीशन मॉनिटरिंग अगर आपके गाइड का और आपका दोनों का इंटरेस्ट मैच होता है तो आप ये टॉपिक भी सिलेक्ट कर सकते हो, कंडीशन मॉनिटरिंग. कंडीशन मॉनिटरिंग में आपको क्या करना होता है, यू हैव टू मेजर योर मशीन स्पीड, साउंड एंड सम इफेक्ट, बिकॉज व्हेनेवर मशीन बैरिंग विल गोइंग टू बी फेलियर, जब फेलियर होने की चांसेस आते हैं उससे पहले पहले उसके नॉइस और उसके वाइब्रेशन से आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर द बेरिंग और वेदर सम फेलियर कुड बी अकर. सो आप प्रेडिक्शन कर सकते हो फ्यूचर का कि कब आपकी मोटर जो है फेलियर हो सकती है, तो वो फेल हो उससे पहले पहले आप उसे वापस रिप्लेसमेंट या उसका जो भी सर्विस है वो कर सकते हैं. सो दिस इज द थर्ड एरिया, दैट कंडीशनिंग मॉनिटरिंग. So now let us discuss the next and my favorite topic, that is speed control technique. So in speed control, if you observe this slide very carefully, यहीं से आपको 10-20 प्रोजेक्ट तो यहीं से निकल के आ जाएंगे. For example, let me discuss the one very important point. Let us say you want to perform field oriented control. So अगर आप field oriented control कर रहे हो तो field oriented control of induction motor, vector control of induction motor, vector control of BLDC motor, vector control of PMSM motor. So ये सारे जो combinations है, field oriented control, direct torque control, direct power control, sensorless control, PWM control, they all are actually you can use the combination with any kind of the motor. अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मैंने डीसी मोटर इन्वॉल्व नहीं की हुई है, बट याद रखना डीसी मोटर इज ऑलरेडी वेक्टर कंट्रोल्ड. ओके, क्योंकि आप क्या करते हो डीसी मोटर में फील्ड और आर्मेचर के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है और आप वो चीज यहाँ पे अचीव करने की ट्राई करते हो. सो दिस इज यू कैन से दैट द टाइप्स ऑफ मोटर, आप कौन सी मोटर सिलेक्ट करते हो, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, पीएमएसएम, बीएलडीसी, और कौन सी टेक्निक यहाँ से आप लेते हो. आप स्केलर कंट्रोल में जाना चाहते हो या वेक्टर कंट्रोल में जाना चाहते हो. सो एक के बाद एक हम हर चीजें समझेंगे कि स्केलर कंट्रोल की क्या एडवांटेज है एज अ प्रोजेक्ट पॉइंट, नॉट एज अ स्केलर एंड वेक्टर कंट्रोल एज अ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स. ओके, सो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ साथ में हम एडवांस कंट्रोल टेक्निक, फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल, डायरेक्ट टॉर्क, सेंसरलेस कंट्रोल, जहां पे आप सेंसरलेस आप स्पीड एस्टिमेट करते हो, तो वो सारी चीजें जो है आप किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर सकते हो. So let us discuss this block diagram of this speed control technique. So first of all you require single phase supply and definitely you require rectifier. अब यहाँ पर एक और बात है, अगर आप मान लीजिए कि आप लैब अगर सिंगल फेज सप्लाई है तो आपके घर पे भी अवेलेबल है, पर अगर आप 3 फेज से आपकी स्टार्टिंग करोगे, मतलब कि आप 3 फेज रेक्टिफायर यूज करोगे तो कॉलेज पे जाना आपके लिए यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा. अगर आप ग्रेजुअली आपके वोल्टेज को इंक्रीज करना चाहते हो, इट मींस दैट यू रिक्वायर हियर ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप ऑफ अरेंजमेंट, तो आप यहाँ पे फैन रेगुलेटर यूज कर सकते हो अगर आपका पावर लेवल कम है. ये याद रखना, यू कैन यूज अ फैन रेगुलेटर ओवर हियर इफ योर पावर लेवल इज लो. ओके, सो उससे क्या होगा दैट यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज योर वोल्टेज. सो आपको एक सेफली आप धीरे धीरे आपके वोल्टेज को बढ़ा सकते हो. सेकेंड थिंग, यू यूज रेक्टिफायर, जो कि आप यूज कर सकते हो या करना ही है. द थर्ड वन इज द फिल्टर कैपेसिटर दैट यू रिक्वायर. द फोर्थ वन इज इन्वर्टर. द फिफ्थ वन इज इंडक्शन मोटर. सो यहाँ पर हम बात करेंगे लेटेस्ट से फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टर. सो इन्वर्टर्स जो है दैट इज अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग, यू वांट टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर. अब यहाँ पे ये मैंने हालांकि लिया हुआ इंडक्शन मोटर, बट यू कैन कंसीडर एनी मोटर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया. यू कैन सिलेक्ट परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर और यू कैन सिलेक्ट लेटेस्ट से BLDC motor, anything. Anyway, let us first discuss about the speed control method of induction motor. तो यहाँ पे हम कितनी मेथड हम जो पढ़ चुके हैं. फॉर एग्जांपल स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, तो वो मत लीजिए, बहुत ही स्मॉल प्रोजेक्ट हो जाएगा. इसी तरह से अगर आप पोल चेंजिंग मेथड यूज करते हो तो वो भी आपको नहीं लेना है. सो अब आपके पास स्टेटर साइड पे कौन सा कंट्रोल बच जाता है, दैट इज ओनली
V by F control. So V by F is ultimately scalar control, okay, or vector control. V by F is can be categorized in again two parts, scalar and vector control. So what you require variable voltage and variable frequency. So this induction motor for variable speed, it will require variable voltage and as well as variable frequency. And what you are having here, you are having here fixed voltage and fixed frequency. So what you have to do, you have to use single phase supply, then you rectified, it means you can convert AC to DC, okay, you can filter out, and then you use this DC to AC by using inverter circuit, राइट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है सर इन्वर्टर हम कौन सा यूज करें वेदर वी हैव टू डिजाइन एंड डेवलप द इन्वर्टर और वेदर वी हैव टू परचेज द रेडीमेड सो वो भी हम डिस्कस करेंगे पहले हम बात कर ले लेट अस से यू वांट टू फायर द थायरिस्टर्स और मॉसफेट और आईजीबीटी इन केस ऑफ इन्वर्टर यू विल प्रेफर टू यूज मॉसफेट और आईजीबीटी देन हाउ यू कैन फायर योर इन्वर्टर्स So definitely you require some logic pulse generator. So यहाँ पे logic pulse generator में आप क्या क्या use कर सकते हो? So that will again depends on the controller whether you can use a 8051 अगर आपको choice है तो आप वो भी use कर सकते हैं. You can use Arduino अगर आपके faculties allow करते हैं क्योंकि काफी faculties Arduino से दूरी बना के रखते हैं. Second thing you can use let us say some auto code generation software अगर allow करते हैं तो that is Wisdom आप use कर सकते हो with combinations of ARM controller. Then you can select your logic pulse generator as a let us say a DSpace use कर सकते हो अगर आपके पास DSpace लैब में अवेलेबल है तो आप AVR और पीक बेस कोई भी कंट्रोलर भी यूज कर सकते हो जिसमें आपको ऑलरेडी कमांड हासिल है. So that will be definitely you require some dead band circuit जो आपको नेट पे इजीली अवेलेबल मिल जाएगी तो मैं उसे यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा. Then you require definitely optical isolation. So ये जो logic pulse generator है ये आपकी जो control circuit है और ऊपर जो चल रही है वो आपकी power circuit है. You definitely require some isolation in between your power circuit and your control circuit. So definitely that's why we are having some optical isolation. तो यहाँ पे आप कोई भी optical isolation IC सिलेक्ट कर सकते हैं जो मेरी मोस्ट फेवरेट है वो है दैट इज 6N137 और मे बी पॉसिबल MCT2E. देन यू कैन सिलेक्ट द ड्राइवर IC दैट इज अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो यू हैव टू सिलेक्ट दिस ड्राइवर IC. सो ये IR2110 इज द ड्राइवर IC that will provide you a 2 gate pulse. Okay, so it means that by using this single IC you can fire 2 IGBTs or 2 MOSFET. So आप यहाँ पे 2 IGBT या 2 MOSFET को एक साथ फायर कर सकते हो. So अगर आपके पास सिंगल फेज इन्वर्टर्स है तो you require 2 driver ICs and you require 4 optical isolation because for each thyristors or each switch in single phase inverter how many switches are there? You are having total 4 switches, right? And you are having DC supply voltage and this is your in between this you are having this is your load. So how many IGBT switches are there or MOSFET switches are there? That will depends on whether it is single phase and if it is 3 phase you are having one more leg over here. So you are having total 6 switches and you are having 3 phase load. So if you are having 6 switches what you require total 3 IR driver ICs and you require 6 optical isolation ICs and this is your induction motor. एक और बात अगर आप इंडक्शन मोटर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है अगर आप इंडक्शन मोटर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके पास इंडक्शन मोटर अवेलेबल नहीं है तो भी आप एक काम कर सकते हैं यू कैन यूज अ रियोस्टेट. ओके even if you can work with the rheostat or resistive RL circuit also you can take a RL load in your lab also and even with your bulb you can use if you are not having an induction motor due to a lack of your you can say that a lack of equipment at your college side end. So आप घर पे बैठ के अगर काम करना चाहते हो तो आप सिंपल रियोस्टेट या आप लेटेस्ट से पोटेंशियोमीटर से लो वोल्टेज पे भी ये पूरी सर्किट को आप घर पे बैठ के बना सकते हैं. हालांकि यहाँ पर एक चीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है जो यहाँ पे आप मैं मिस कर रहा हूँ दैट इज DSO. अगर आप घर पे बैठ के बनाना चाहोगे तो भी आपको ये चीज हमेशा चाहिए दैट इज योर DSO. सो DSO अगर आपका ग्रुप जो है 5 या 6 का है और कंबाइन मिलके अगर आप मान लो कि एक DSO परचेस कर सकते हैं जो 12 से 15 या 20 हजार में आपको लो कॉस्ट DSO मिल जाएगा. और अगर आपकी कॉलेज अलाउ करती है तो वेल एंड गुड आप वहां पर DSO कोई भी कॉलेज अलाउ नहीं करेगी. हाँ एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है आप चाहे तो CRO यूज कर सकते हैं आपके कॉलेज का जो कि अब काफी यूज नहीं होता और आपके कॉलेज में ऐसे ही पढ़ा होगा. तो अगर आपको ये मिल सकता है तो आप इससे भी
टेम्पररी काम चलाओ काम कर सकते हैं। तो अगर आप ये ले लो तो उसके बाद अगर आपके पास ये सारी चीजों में आपका इतना खर्चा नहीं होगा। जैसे कि मैं अगर बोलूँ सिंगल फेज सप्लाई आपको ऐसे ही मिल जाएगा, रेक्टिफायर में कोई इतनी कॉस्ट नहीं जाती है, फिल्टर भी कुछ इतना कॉस्टली नहीं होता है, आप 20-30 रुपए में परचेज कर सकते हैं। अगर आप खुद से ये पूरी सर्किट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मान लो कि आप 8051 बेस कंट्रोलर आपको कॉलेज से मिल जाता है तो गुड, नहीं तो मार्केट से आप पूरा जो परचेज कर लोगे 200-300 रुपए में आपको मिल जाएगा। डेडबैंड सर्किट में तो आप जनरली एंड गेट, नेट गेट और नॉट गेट का यूज करते हो, तो इसका कॉस्ट भी आपका लेस देन 100 में आप गिन सकते हो। ऑप्टिकल आइसोलेशन मुझे जहां तक याद है तो इसकी कॉस्ट भी 20-30 रुपए जितनी ही है। आईआर की थोड़ी सी कॉस्ट है, मुझे जहां तक याद है 100 और 100-200 या उससे लेस है, मुझे इतना पता है। और दूसरी जो बात करें हम इन्वर्टर के लिए तो और हमारी स्विचेस है। अब यहाँ पे स्विचेस में आपके पास ऑप्शन है, आप लो वोल्टेज और लो पावर पे काम करना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, यू कैन यूज IRF 840। तो इसकी भी इतनी कॉस्ट नहीं रहेगी, IRF 840 आपको मिल जाएगा लेस देन 100 रुपीज। पर हाँ, अगर आप मान लो कि हाई पावर पे काम करना चाहते हो, मतलब कि आप एक्चुअली इंडक्शन मोटर को रियलिटी में रन करना चाहते हो, तो आपको यूज करना होगा ST30N120। सो ये जो है दैट इज 30 एम्पियर एंड 1200 वोल्ट, ये आपकी IGBT हो गई। सो इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, मुझे जहां तक याद है अराउंड 300 रुपीज की आपको पड़ेगी एक। सो इसकी कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लो, टोटल कॉस्ट आपका इस पूरे सिस्टम में क्या लगेगा। इंडक्शन मोटर जब आप रेजिस्टेंस लगा सकते हो और आप पूरा ये सिस्टम जो है, सिर्फ एक ही चीज है, आपको हर एंड पे आप चाहोगे कि आपके पल्सेस को आप ऑब्जर्व करो। सो उसलिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक DSO या CRO। सो आपको अगर ये अरेंजमेंट आप कर सकते हो तो ये पूरी सर्किट जो है वो आप आपके घर पे भी अगर कॉलेज नहीं जा सकते हो तो बना सकते हो। तो दिस इज रेक्टिफायर सर्किट। चलिए, दिस इज फुल वेव इन्वर्टर। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि आप फुल वेव इन्वर्टर को किस तरह से वर्क करते हैं, पर मैं मान के चलता हूँ कि आप फुल वेव इन्वर्टर की प्रिंसिपल को जानते हो। व्हेनेवर दिस टू स्विचेस आर ऑन पॉजिटिव वोल्टेज, व्हेनेवर दिस टू स्विचेस आर ऑन नेगेटिव वोल्टेज। डायोड क्यों है वो तो आप सभी को मेरे हिसाब से पता ही होगा। ओके, सो ये सब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोलर की। सो दिस इज योर 8051 कंट्रोलर। सो ये जो है मेरा 8051 कंट्रोलर है एंड दिस इज माय ड्राइवर आईसी। ये जनरली डी टाइप लैच होती है, जिसकी जनरली ये जो है दैट इज आई थिंक 74LS373 है। माइक्रो कंट्रोलर की सिंकिंग एंड सोर्सिंग कैपेबिलिटी काफी कम होती है, इट इज इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पियर। सो ये माइक्रो एम्पियर जो आपके ऑप्टिकल आइसोलेशन की जो एलईडीज है, एलईडी की रिक्वायरमेंट भी 10 to 20 मिली एम्पियर होती है। सो ये जो है आपकी एलईडी की रिक्वायरमेंट जब फुलफिल नहीं कर पाता है तो उस वक्त आपको ये इस तरह के ड्राइवर आईसी की जरूरत रहती है। सो अगर आप, ये तो मेरी पूरी फुल किट है, अगर आप चाहो तो ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, आप इतना सा यूनिट बना सकते हो या मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। सो इफ यू आर हैविंग 8051 कंट्रोलर, आपके पास अगर 8051 कंट्रोलर है तो आप कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से दिस इज योर 8051 कंट्रोलर्स, और वो जो मैंने आपको बताई थी पूरी सर्किट दैट इज 6N137 IR2110, उसके ये 3 यूनिट है, उसमें से मैं एक यूनिट आपको जूम करके दिखाता हूँ। So let me zoom out this part. So अब आप यहाँ पर देख सकते हो। So let us, this is nothing but single phase full wave inverter. So single phase full wave inverter, so यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर से मेरे पल्सेस है। So I am having let us say 4 MOSFET, यहाँ पे मैंने यूज किया 4 MOSFET that is IRF 840। So इसको ड्राइव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ड्राइवर आईसी IR2110, और यहाँ पे ये आइसोलेशन आईसी 6N137। रिमेंबर इसकी सिंकिंग एंड सोर्सिंग कैपेबिलिटी कम है, तो मैंने वहां से 74LS373 ड्राइवर आईसी से यहाँ पे पल्सेस लिए हुए हैं। उसके बाद हमने क्या यूज किया हुआ है, दिस इज माय ऑप्टिकल आइसोलेशन दैट इज 6N137, राइट। दिस 6N137 विल गिव मी अ पल्सेस जो माइक्रो कंट्रोलर ने जनरेट किए हुए हैं, और वो जो पल्सेस है वो मैं किसे दे रहा हूँ, IR2110, क्योंकि मेरी जो MOSFET और IGBTs है दे रिक्वायर लेट अस से 10 to 12 वोल्ट, और यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है दैट इज अराउंड 5 वोल्ट। सो ये क्या करेगा, ड्राइवर आईसी दैट विल जनरेट एंड दैट विल यू कैन से that will actually amplify your voltage signals and ultimately this will fire your MOSFET। so ये हमारे 4 MOSFET, तो ये पूरा एक यूनिट हो गया। दिस इज योर रेक्टिफायर यूनिट जो यहाँ पे 12 वोल्ट और 5 वोल्ट की जो भी रिक्वायरमेंट है इस ड्राइवर आईसीस की वो यहाँ से फुलफिल कर रहे हैं।
सो अगर आप इस पूरी सर्किट में देखोगे तो ये पूरी सर्किट आप आपके घर पे बैठ के एक सिंगल ये यूनिट भी आपके घर पे बैठ के बना सकते हो। सो नाउ लेट मी राइट डाउन कि अगर आप एक इन्वर्टर, फुल वेव इन्वर्टर अगर आप बना लेते हो, अगर आप एक फुल वेव इन्वर्टर घर पे बना लेते हो तो आप कौन कौन से प्रोजेक्ट कर सकते हो। सो अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं तो आप एक हार्मोनिक रिडक्शन टेक्निक कर सकते हो। सो हार्मोनिक रिडक्शन टेक्निक, वी ऑल नो दैट whenever you are having an inverter, okay, so this inverter contains all harmonics, okay, so third, fifth, seventh, यहाँ पर सभी हार्मोनिक्स है। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज अ क्वासी स्क्वायर वेव इन्वर्टर। सो क्वासी स्क्वायर वेव इन्वर्टर में आप ये एंगल का कंट्रोल करके, बाय कंट्रोलिंग दिस एंगल यू कैन कंट्रोल द हार्मोनिक्स, राइट। सो ये एक आप एक मेथड से जहाँ पे आप हार्मोनिक रिडक्शन टेक्निक, जहाँ पे आप स्पेसिफिक हार्मोनिक को रिड्यूस कर सकते हैं, लेट अस से फिफ्थ हार्मोनिक, लेट अस से सेवंथ हार्मोनिक, आप कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिक, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिक भी रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो सजेस्ट कर सकता हूँ, आईआईएससी बैंगलोर का जी नारायण सर का। सो जी नारायण सर का एक वीडियो लेक्चर है सिलेक्टिव हार्मोनिक एलिमिनेशन टेक्निक। सो कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे आप कॉम्बिनेशंस ऑफ हार्मोनिक रिमूव कर सकते हैं। तो आप अगर डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं तो आप इस तरह का प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंगल फेज फुल वेव इन्वर्टर। ओके, द सेकंड वन जो मैंने यहाँ पे आपको एक और इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, अगर आप इन्वर्टर्स यूज करते हो तो आप हाई फ्रीक्वेंसी पे जा सकते हो अगर आप सिंगल फेज फुल वेव इन्वर्टर। बट हाई फ्रीक्वेंसी अगेन मैं जो बात कर रहा हूँ नॉन एसपीडब्ल्यूएम या एसवीपीडब्ल्यूएम की नहीं, ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी पल्सिंग है, ये पल्सेटिंग फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा सकते हो। एंड जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, डेफिनेटली आप फ्रीक्वेंसी को जितना इंक्रीज करोगे उतना ही आपकी लॉसेस कंपोनेंट बढ़ेगी। ओके, सो आपकी कॉल लॉसेस कंपोनेंट बढ़ेगी और लॉसेस ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ व्हिच इट इज अल्टीमेटली इट शुड बी इन फॉर्म ऑफ हीट। सो जितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा उतना ही ज्यादा आप यूटिलाइज कर सकोगे, और वो प्रैक्टिकल का और या वो प्रोजेक्ट का नाम है दैट इज इंडक्शन हीटिंग। सो आप ये प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं दैट इज इंडक्शन हीटिंग। सो अगर आप इंडक्शन हीटिंग का प्रोजेक्ट लोगे तो एक दिक्कत या एक आप कह सकते हो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होगा कि आप किस तरह से उसकी कॉइल डिजाइन करते हो। तो कॉइल डिजाइनिंग अगेन एक आपका अल्टीमेट टास्क होगा, दैट हाउ यू कैन डिजाइन द कॉइल सच दैट इट इज गोइंग टू बी और यू कैन यूटिलाइज फॉर योर प्रोजेक्ट आल्सो। Now let us discuss about the next thing that you can do with your particular setup, that is cascade edge bridge multi-level inverters. So यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मल्टी लेवल इन्वर्टर आप डिजाइन कर सकते हो। सो हियर यू आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट डीसी वोल्टेज सोर्स। सो अगर आप एक यूनिट बना सकते हो तो क्या आप दूसरे दो यूनिट और ऐड नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह के यूनिट ऐड करोगे, सो बाय यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन यू कैन जनरेट योर मल्टी लेवल इन्वर्टर्स। ओके, सो कास्केड एज ब्रिज मल्टी लेवल इन्वर्टर ये भी आप उसी यूनिट से बना सकते हो। सो यहाँ पे आपके पास काफी प्रोजेक्ट निकल के आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन डिजाइन 27 लेवल मल्टी लेवल इन्वर्टर्स, जहाँ पे हम असिमेट्रिकल मल्टी लेवल इन्वर्टर की बात करेंगे, जहाँ पे ये तीनों जो वोल्टेज होंगे दैट 3 वोल्टेज लेवल्स आर डिफरेंट। अब ये वोल्टेज लेवल कहाँ से अचीव कर सकते हो ये भी मैं आपको बता दूं। या तो आप सिंपल बैटरी यूज कर लीजिए, 9 वोल्ट की बैटरी आती है तो यहाँ पे एक 9 वोल्ट की बैटरी ले लीजिए, यहाँ पे 2 9 वोल्ट की बैटरी ले लीजिए, यहाँ पे 3 9 वोल्ट की बैटरी ले लीजिए, या फिर दूसरा कोई कॉम्बिनेशन ले लीजिए। 3 के मल्टीप्लीकेशन में भी ले सकते हैं, लेट अस से 1 3 एंड 9। तो अगर आप इस तरह के कॉम्बिनेशन बैटरी वोल्टेज अगर आप ले लोगे, सो आप ये पूरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट आपके घर पे भी कंप्लीट कर सकते हो और बैटरी वोल्टेज आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। इवन इफ यू कैन यूज योर बाइक बैटरी वोल्टेज, बाइक बैटरी आल्सो ओवर हियर। सो बाय यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन यू कैन जनरेट अ 27 लेवल। हाँ, पर यहाँ पर भी एक बात है, आपको डीएसओ की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ही, क्योंकि आप हर स्टेज पे चेक करना चाहोगे कि यहाँ पर क्या वोल्टेज है, यहाँ पर क्या वोल्टेज है, वेदर दिस कार्ड इज वर्किंग और नॉट। सो ये पूरा जो आपको आप मैंने ऑलरेडी एक कार्ड का कॉस्टिंग आपको बता दिया हुआ है, तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर 3 यूनिट चाहिए। कास्केड एज ब्रिज मल्टी लेवल इन्वर्टर, तो यहाँ पर मैंने यही माइक्रो कंट्रोलर यूज किया हुआ है। सो दिस माइक्रो कंट्रोलर विल जनरेट द पल्सेस and you can see here I have used the 3 level of battery voltage. So here we are having 3 DC source and you can observe यहाँ पे आपको resistance या कुछ भी नहीं दिखेगा, but actually यहाँ पे मैंने rheostat रखा हुआ है and this will generate you can observe the output voltage. Okay, very smooth sinusoidal waveform you can observe here. So this is a full schematic. So आप लोगों में से अगर कोई ये schematic यूज करना चाहे तो मैं इसे थोड़ा सा zoom भी कर दूं ताकि आप लोग इसे पॉज करके जब भी यूज करना चाहो तो ये पूरी सर्किट का आप यूज कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट 6N137 जो मैंने आपको आगे भी बता चुका हूँ। दिस इज 4 ऑप्टिकल आइसोलेशन आईसी, दिस इज योर IR2110 आईसी
एंड दिस इज योर फोर MOSFET IC. सो ये अगर आप लो पावर में काम करते हो तो यू कैन यूज 67137 ऑल्सो, और यहाँ पे आप एज अ लोड रियोस्टेट लगा सकते हो, या आप चाहो तो आप पोटेंशियोमीटर भी लगा सकते हो. सो अगर लो वोल्टेज पे काम करना चाहो तो आप इजीली यूज कर सकते हो बाय यूजिंग 8051. Even AVR is also good, and even if your faculty is allowed, then Arduino is also good option. So here I have zoomed this part so you can observe this sinusoidal waveforms. So this is totally 27 level of inverters. Okay, this is asymmetrical multi-level inverter. So you can also do a symmetrical in multi-level inverter in which your three levels of battery will remain same. So that is also you can compare symmetrical and asymmetrical multi-level inverter. Nowadays there will be another trending issues or trending thing is that you PWM your DC voltage itself. Okay, so that way you can also remove the harmonic. So you search for IEEE research paper. That is the best thing. Okay, you search for IEEE recent paper and you can select any combinations. Okay, let us say they will perform some PWM technique, then you can also utilize that. But before PWM technique, make sure that whether your controller is able to generate PWM or not. So this is another version that we have used only single power source and we use the capacitor. This idea we have also got from one IEEE paper, that why you are using a different combination. You use this capacitor voltage for charging and uncharging. So this capacitor voltage will also use to produce a multi-level cascade edge-based inverter. Because we all are aware that what is the major disadvantage of multi-level inverter? You require different DC cell. So by using this type of combination, okay, instead of only what we are using only one DC source, and we can utilize one capacitor. So this capacitor is also holding some voltage, and we can utilize this voltage to generate our voltage level. Okay, so some switching redundancy can be used to charge this capacitor and discharge this capacitor. So we can also, we have searched in IEEE paper and we have found this, and we can feel that we can also utilize our already exist hardware. So next batch जो मेरे पास आया, मैंने उसे यही प्रोजेक्ट दे दिया, और we can utilize the same hardware. ये जो हार्डवेयर यहाँ पे हमारे पास बना हुआ था, वही हार्डवेयर मैंने नेक्स्ट बैच में दे दिया. तो आप भी कुछ इस तरह से सोच सकते हैं. So you can use your some project also. So now let us observe this. Here you are having microcontroller, and we are utilizing the same hardware जो आपको मैंने आगे बताया था. And now we are using this capacitor. Okay, so you can observe here there is only one single source, and we can utilizing the capacitor. Okay, so you can utilizing your capacitor to generate your voltage. So you can see here this is also, though it is not purely sinusoidal waveform, but slightly you can say that a triangle type of approach, but that can be corrected by using programming approach. Then another thing is that the three-level diode clamp multi-level inverter. You can use, or you can simulation type of project you can select by using this three-level diode clamp multi-level inverters. Okay, even if you are having a good knowledge and enough hardware support, then you can go for three-level diode clamp multi-level inverter. जो उस हार्डवेयर से इसे आप मर्ज नहीं कर सकते, you require extra component and extra circuitry. So three-level diode clamp multi-level में SVPWM techniques. अब सिमुलेशन, अगर सिर्फ आप सिमुलेशन बेस्ड प्रोजेक्ट लेना चाहते हो तो थ्री लेवल डायोड क्लैम्प एसपीपी मल्टीलेवल इन्वर्टर बेस्ड ऑन एसपीपीडब्ल्यूएम टेक्निक कैन बी अ गुड, यू कैन से दैट द टॉपिक फॉर योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सो यहाँ पे आप कौन सी इतने सारे रिडंडेंसी स्विचिंग स्टेट्स में आप डिफरेंट पैरामीटर के साथ आप आपके प्रोजेक्ट को और आपके एनालिसिस को आप यहाँ पर कर सकते हो. जैसे कि एसपीपीडब्ल्यूएम टेक्निक में आप यूज कर सकते हो लेटेस्ट से हार्मोनिक इंजेक्शन, थर्ड हार्मोनिक इंजेक्शन पीडब्ल्यूएम टेक्निक, एसपीडब्ल्यूएम टेक्निक. सो आप कंपैरिजन और एनालिसिस बेस्ड पीडब्ल्यूएम टेक्निक ले सकते हो, दैट इज एसपीडब्ल्यूएम, थर्ड हार्मोनिक इंजेक्शन एंड एसपीपीडब्ल्यूएम फॉर थ्री लेवल डायोड क्लैम्प मल्टीलेवल इन्वर्टर. और आप तीनों के सिमुलेशन करो और एक एनालिसिस करके आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो. Now let us discuss about the three-phase inverter. So this is also a three-phase inverter. Sometimes if you want to perform at high power level, थोड़ा सा अगर आपको power level बढ़ाना है, मतलब आप चाहते हो कि आप आपकी मोटर रन कराना चाहते हो, तो in case you require some sophisticated and you can say that some stable inverter. So in that case you can use this type of inverter also. So ये इन्वर्टर्स है. यहाँ पर अगर मैं आपको सारे एलिमेंट फिर से एक बार बता दूं तो ये ड्राइवर आईसीस है. दिस इज योर ऑप्टिकल आइसोलेशन. दिस इज योर IR 2130 आई थिंक, और या 2113, मुझे एग्जैक्टली अभी नंबर याद नहीं है, पर ये दोनों में से कोई एक है. दिस इज ऑल्सो ड्राइवर आईसी. दिस इज सिंगल आईसी विल अल्टीमेटली ड्राइव योर 6 IGBTs. ये 6 IGBTs है, और यहाँ पे आपके पास ये आपके
3 आउटपुट एंड दिस इज योर डीसी इनपुट। सो इस तरह के इन्वर्टर आप यूज कर सकते हो जब आप मीडियम और थोड़ा सा पावर लेवल आपका थोड़ा सा हाई है। सो इन दैट केस यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ इन्वर्टर्स। सो ये आपको रेडीमेड अवेलेबल मिल सकता है। इसकी कॉस्टिंग मुझे जहां तक याद है, लास्ट में मैंने जो परचेस किया था मैं वही आपको प्राइस बता दूं तो ये अराउंड 7K के आसपास था जब मैंने परचेस किया था। अभी मुझे उसका प्राइस याद नहीं है। So this is the setup that I have used for speed control of 3-phase induction motor। अब यहाँ पे एक काफी important बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। This is my microcontrollers and this is my inverter। So मैं चाहता था कि अब मैं मेरी इन्वर्टर से मोटर को रन करूँ, तो इस वक्त मैंने वो मेरा कार्ड जो था जो सिंगल फेज पूर्व वाला उससे एक्सटेंड नहीं किया। I have used this ready-made card। So this ready-made card having some, you can say that, a reliable card, and that's why you can connect with your machine। So this is your machine। यहाँ पे क्या limitations है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। The problem with here is that you can observe these waveforms। Okay, there is so less number of pulses। Here what we are doing SVPWM technique। यहाँ पे हमने जो speed control use की थी that is SVPWM scalar control technique। So the number of pulses अगर आप काउंट करोगे अराउंड 8 to 10 pulses per half cycle ही हमें मिला था। Because this microcontroller is operated at very less frequency। It is around 11.0592 megahertz। इतना ऑड नंबर क्यों मैं मानता हूं कि अगर आपको पता ही होगा। So this is having a very less frequency। So यहाँ पर जो उसका टाइमर है वो तो डिवाइड बाय 6 क्लॉक मोड या 12 क्लॉक मोड, सो और डिवाइड हो रहा है। तो वो 3 पल्सेस ऑलरेडी अगर आप सिंगल फेज एसपीडब्ल्यूएम जनरेट करोगे या सिंगल फेज एसवीपीडब्ल्यूएम जनरेट करोगे नो प्रॉब्लम। पर जहां पे आप तीनों फेज के लिए अगर एसवीपीडब्ल्यूएम पल्सेस जनरेट करना चाहते हो और आप चाहते हो 8051 कंट्रोलर यूज करो तो वो आपके लिए वर्थ नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया था, वी हैव यूज अ टाइमर, पीसीए टाइमर हमने यूज किया था एंड वी यूज अ लुकअप टेबल टेक्निक। लुकअप टेबल टेक्निक में हमने क्या किया था, लुकअप टेबल टेक्निक मींस यू आर हैविंग लेट अस से वेक्टर्स और यहाँ पे आपका रेफरेंस वेक्टर्स है। सो आप ऑलरेडी जो टाइम जो आप माइक्रो कंट्रोलर के पास कैलकुलेट कराते हो वो एग्जैक्टली वो टाइम कैलकुलेट हमने पहले से करके रखा हुआ था। दैट एवरीथिंग कि यहाँ पर आपका टाइम कितना होगा, यहाँ पे आपका टाइम कितना होगा, यहाँ पे आपका टाइम कितना होगा। सो वो टाइमिंग जो है वो हमने लुकअप टेबल टेक्निक बना के वो ऑलरेडी हमने फेड कर दिया था और पीसीए टाइमर को उस टाइम पे इंटरप्ट जनरेट करना है। तो फिर भी हम जहां तक मुझे याद है 8 से 10 पल्सेस पर साइकिल या पर हाफ साइकिल ही जनरेट कर पाए थे। अगर आप उससे ऊपर जाना चाहते हो तो फिर आपको 8051 की लिमिटेशन आ जाएगी और उसके बाद आप यूज नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट याद रखना, अगर आप स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर करते हो यूजिंग एसपीडब्ल्यूएम या एसवीपीडब्ल्यूएम टेक्निक, सो आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ा नहीं पाओगे। 10 पल्सेस मतलब अराउंड 50 इंटू मीन्स अराउंड 2.5 किलोहर्ट्ज मुझे यहाँ तक याद है। उससे ज्यादा तो आप फ्रीक्वेंसी आपकी ट्रायंगल की नहीं बढ़ा सकते। सो इट मीन्स दैट इफ यू आर हैविंग साइन एंड यू आर हैविंग ट्रायंगल then this triangle frequency could be xc could be equal to around 2.5 किलोहर्ट्ज। या मुझे जहां तक याद है 2.5 किलोहर्ट्ज भी मैं अचीव नहीं कर पाया था, उससे भी शायद लेस है। एनीवे तो लिमिटेशन आपको पता चल गई कि इफ यू आर हैविंग दिस अरेंजमेंट, सो दो दिस इज वर्किंग गुड एंड यू कैन रन दिस पर्टिकुलर थिंग, बट आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा सकते। आप 5 किलोहर्ट्ज 8 किलोहर्ट्ज 9 किलोहर्ट्ज तक नहीं जा सकते। ओके और ये मैंने यूज किया हुआ है, दिस इज योर आइसोलेशन। ओके इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि व्हाई वी रिक्वायर आइसोलेशन। डीएसओ और इसके बीच में आपकी पावर सर्किट में मैंने आइसोलेशन और ये आइसोलेटर कनेक्ट किया हुआ है, इसके बारे में भी हम कभी अच्छे से बात करेंगे।